start with some recap and then we will start our new topic. Yesterday we have studied about the types of goods. Goods are of two types, intermediate goods and final goods. Intermediate goods are those goods which are for resale, and another one are those goods which do not cross the boundary line of production. Here in today's topic our topic is only the boundary line of the production, but intermediate goods are those goods which do not cross the boundary line of production. It means that goods are still in the process of the production. It means they didn't complete the production process. So intermediate goods are that type of goods. For an example, if we take an example of milk, milk is also an intermediate goods because milk is used by the sweet shop for making sweets. So for sweet shop, milk is intermediate goods. Next is final goods. Final goods are those goods which have crossed the boundary line of production and are ready to use by the consumer. फाइनल गुड्स ऐसे गुड्स होंगे जिन्होंने बाउंड्री लाइन प्रोसेस प्रोडक्शन का पूरा कर लिया है, अब इन गुड्स को कंज्यूमर के द्वारा यूज किया जा सकता है ना. सो फाइनल गुड्स का एग्जांपल में भी अपन अगर मिल्क को ले ले, लाइक मिल्क इज यूज्ड बाय हाउसहोल्ड. इफ मिल्क इज यूज्ड बाय द हाउसहोल्ड, इट कैन बी द फाइनल गुड्स. So same milk is intermediate goods and same milk is final goods. This is a question for you. So that's why so the same good can be intermediate goods or the same good can be the final goods. But मैंने यहाँ पे हैश में लिखा है, हैशटैग में that end user ब्लॉक लेटर में लिखा है ताकि आप इस पे फोकस कर सकें. What is the meaning of the end user? If you are able to find the end user, then you can very easily identify any good in intermediate good or final. So the same good can be intermediate goods and the same good can be final goods. So if you are able to find the end user and you are identify the end user of the goods, then only you can identify the intermediate goods or final goods. Like हमने एंड यूजर पता किया, अगर हमें मिल्क का एंड यूजर पता होगा तभी हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो इंटरमीडिएट गुड है या फाइनल गुड. एंड यूज कैसे पता किया? अगर हमने ये पता किया कि मिल्क किसके लिए काम आ रहा है, दैट मिल्क इज यूज्ड बाय हाउसहोल्ड, देन इट इज फाइनल गुड. देन द सेम गुड इज यूज्ड बाय द स्वीट शॉप, देन इट इज इंटरमीडिएट गुड्स. इंटरमीडिएट गुड्स मैंने बताया ऐसी गुड जो अभी भी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में काम आने वाली है, यानी जिन्होंने प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं किया है वो इंटरमीडिएट गुड्स है. तो और सेम गुड को इंटरमीडिएट गुड कहेंगे जब वो स्वीट शॉप के द्वारा यूज की जा रही है. और एक और एग्जांपल मैं अगर दूं, जब मिल्क वेंडर्स सारा मिल्क डेयरी शॉप को देते हैं, देन डेयरी शॉप के लिए वो क्या होगा? इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि डेयरी प्रोडक्शन क्या करेगा, उसकी और चीजें बनाएगा या उसे पैकेट्स में पैक करके दूध को बेचेगा. तो you need to identify the end user. If you are able to identify the end user, you can easily identify the intermediate goods or final goods. So basic line is end user. You need to focus on end user. And now we are going to start our today's topic. Yes. Production boundary and value addition is our today's topic. Production boundary is an imaginary line. वास्तव में ऐसा कोई लाइन नहीं होता है, ऐसा कोई बाउंड्री नहीं होता है, बट इट इज एन इमेजिनरी लाइन इन एन इकोनॉमिक प्रोडक्शन. जो भी प्रोडक्शन हो रहा है इकोनॉमी में, उस प्रोडक्शन से रिलेटेड एक इमेजिनरी बाउंड्री हमने बनाई है. इफ अ गुड इज अंडर द बाउंड्री, अगर कोई भी गुड जो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है, इट इज इंटरमीडिएट गुड. इफ व्हेनेवर इट्स क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्ट, so if a product is cross the boundary line of the production, it means it becomes final good. If it is inside the boundary line of the production, then it is intermediate goods. Very simple. यानी बाउंड्री लाइन एक इमेजिनरी लाइन है, वास्तव में ऐसा कोई लाइन नहीं होता है. बस आपको यही समझना है कि ऐसा गुड जिसने प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है,
और वो बाउंड्री लाइन से बाहर, प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन से बाहर आ गया है, इट मींस वो फाइनल गुड हो गया है। और ऐसी गुड्स जो अभी भी प्रोडक्शन बाउंड्री में हैं, जो बदलती जा रही है अपनी वैल्यू को, इट मींस वो इंटरमीडिएट गुड्स है। एक और मैंने एग्जांपल लिया है वैल्यू एडिशन, इसी से रिलेटेड है। वैल्यू एडिशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैल्यू एडिशन को आप इस तरह से समझ सकते हैं, लाइक फॉर एन एग्जांपल, एक टेलर है, फॉर टेलर वो शर्ट्स स्टिचेस करता है। तो फर्स्ट वो केवल क्लोथ लाता है, यानी एक पूरा रोल लेके आता है, उस रोल से वो कटिंग करता है, यानी उस रोल को उसने वैल्यू दिया, फर्स्ट कटिंग करके शर्ट का शेप दिया, देन उसने स्टिचिंग किया, अब सेम क्लोथ का वैल्यू ऐड हुआ स्टिचिंग होने से, देन आयरन किया और वैल्यू ऐड हुआ, देन पैकिंग किया यानी और वैल्यू एडिशन हुआ, देन फाइनली इट इज फॉर एंड यूजर के लिए रेडी है यूज करने के लिए, यानी कंज्यूमर्स के लिए। सो वैल्यू एडिशन में क्या हुआ, हर एक प्रोसेस पर उस चीज की वैल्यू का एडिशन हो गया, यानी शर्ट केवल क्लोथ को आप रैप नहीं कर सकते हैं अपनी बॉडी का, यानी उस क्लोथ की कटिंग हुई, देन स्टिचिंग हुई, देन पैकिंग हुई, तब जाकर के वो फाइनली आपके लिए काम पे आया, यानी फाइनली आप रेडी टू यूज करने लायक हो गए। सो दिस इज वैल्यू एडिशन प्रोसेस, दिस इज वैल्यू एडिशन प्रोसेस। वैल्यू एडिशन, yes, to make understand the value addition process, I must take one more example of a farmer. Suppose a farmer produces wheat worth rupees, wheat produce किया है फार्मर ने 1000 का, और 1000 के wheat को उसने बेकर को बेच दिया है, बेकर को बेच दिया। अब इस बेकर ने क्या किया, इस 1000 की wheat का वैल्यू एडिशन किया और इससे ब्रेड्स बनाई, और उन ब्रेड्स की वैल्यू हो गई अब 2000, और इन ब्रेड्स को मार्केट में बेच दिया ब्रेड बना करके। सो व्हीट फार्मर ने प्रोड्यूस किया 1000 का, और 1000 के व्हीट को बेकर को 1000 में बेचा, और बेकर ने इस 1000 के व्हीट को कन्वर्ट करके यानी आटा बना करके और उसकी ब्रेड्स बना करके उन ब्रेड्स को 2000 रुपीज में बेच दिया। सो ब्रेड इज द फाइनल कंजप्शन, ब्रेड इज द फाइनल कंजप्शन फॉर द कंज्यूमर। अब वो ब्रेड जो है वो फाइनल प्रोडक्ट बन चुका है, अब उसमें और कुछ वैल्यू एडिशन नहीं किया जा सकता। यानी अगर हम ये माने कि फार्मर के कोई भी इंटरमीडिएट कंजप्शन नहीं है, हमको ये सपोज करना होगा कि मान लेते हैं कि फार्मर को उस व्हीट को बेकर तक पहुंचाने में कोई भी इंटरमीडिएट कंजप्शन और नहीं लगा, तो अब यहाँ पर फाइनल इंटरमीडिएट कंजप्शन फार्मर्स के लिए तो निल है, लेकिन इंटरमीडिएट कंजप्शन बेकर को करने पड़े, उस बेकर को उस व्हीट की वैल्यू को ऐड करना पड़ा, है ना। यानी बेकर ने क्या किया, 2000 की वैल्यू 2000 की ब्रेड्स बनाया और 1000 तो उसने व्हीट खरीदा था, यानी अब बेकर ने कितना वैल्यू एडिशन किया, 1000 रुपीज का। बेकर ने 1000 रुपीज की व्हीट्स को 2000 रुपीज बनाए, कैसे, वैल्यू एडिशन करके। सो दिस इज द वैल्यू एडिशन प्रोसेस, है ना। सो ब्रेड इज द फाइनल गुड एंड नाउ इट इज रेडी टू यूज बाय द कंज्यूमर। सो इसी तरह से अगर वही एग्जांपल अगर कंसीडर करें, अगर अपन शर्ट का, तो शर्ट का उसने जो क्लोथ का रोल लिया था, दैट क्लोथ रोल इज कन्वर्टेड इनटू द कटिंग, स्टिचिंग, पैकिंग एंड देन इट इज यूज्ड बाय द फाइनल कंज्यूमर। सो स्टेज वाइज उस कपड़े की वैल्यू में क्या हो गया, एडिशन हो गया और वो फाइनल गुड्स बनी। जब तक वो कटिंग में थी इंटरमीडिएट गुड्स थी, स्टिचिंग में थी इंटरमीडिएट गुड्स थी, पैकिंग में थी इंटरमीडिएट गुड्स थी, तब तक इंटरमीडिएट गुड्स थी, है ना। अब जब वो पैक हो चुकी है फाइनली, तब वो फाइनल गुड्स है और वो उसका एंड यूजर कंज्यूमर होगा। नाउ वी आर हैविंग द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स पढ़ रहे हैं हम, तो हम क्लासिफिकेशन भी फाइनल गुड्स का ही कर सकते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स का नहीं। अगेन आई एम टेलिंग यू कि इंटरमीडिएट गुड्स का क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता, क्योंकि दे डिडंट कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन।
It means they are for resale, but final goods are not for resale. दोबारा सेल के लिए नहीं है, ready to use by the consumer. So final goods का classification two types में हो सकता है. Consumption goods कहते हैं इनको and capital goods. Consumption goods को हम consumer goods भी कहते हैं. So if you are a consumer, why are you using goods? Simply for satisfying your wants. So consumption goods or consumer goods are those goods which simply satisfy the human wants. यानी जो इंसानों की इच्छाओं को पूरा करता है, ऐसी चीजें क्या कहलाती है? कंजप्शन गुड्स. आप सब डेली लाइफ में कंजप्शन गुड्स यूज करते हैं. कार, टीवी, फर्नीचर. मैंने इसके 3 एग्जांपल लिखे हैं. कार, टीवी एंड फर्नीचर आर टाइप्स ऑफ consumption goods. In today's topic we only are having the topic of consumption goods, and further we are classifying the consumption goods. अभी हमने फाइनल गुड्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा, कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स. अब हम कंजप्शन गुड्स के भी टाइप्स पढ़ रहे हैं. तो आपको मीनिंग क्लियरिफाई करना है that consumption goods are those goods which satisfy the human wants. Yes, now we are having the classification of consumption goods. Consumption goods के टाइप पढ़ रहे हैं. फर्स्ट टाइप है ड्यूरेबल गुड्स. ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सो सिंपली ड्यूरेबल से समझ में आ रहा है ड्यूरेबल गुड्स ऐसी गुड्स है जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए काम आती है. इट मीन्स टीवी सेट. सेमी ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर जनरली यूज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, जनरली फॉर 1 ईयर. वो पीरियड ऑफ टाइम 1 ईयर होता है, यानी कुछ समय के लिए ही वो हमारे पास होती है. लाइक एक एग्जांपल मैंने लिखा है क्लोथ्स. ड्यूरेबल का एग्जांपल लिखा मैंने टीवी सेट, और सेमी ड्यूरेबल का एग्जांपल लिखा है मैंने क्लोथ्स. नॉन ड्यूरेबल गुड्स आर दोज फाइनल गुड्स विच आर यूज्ड फॉर अ सिंगल टाइम. एक बार भी काम में ले सकते हैं, अगेन एंड अगेन नहीं. फॉर एन एग्जांपल मिल. Services are those goods, or we can say that types of those final goods which are used for satisfying the human wants. Services are intangible assets, like we cannot see them, we cannot touch them, but we can feel them, like the services of teacher or the services of doctor. So here we completed the classification of कंजप्शन गुड्स. ड्यूरेबल गुड्स का एग्जांपल टीवी सेट, सेमी ड्यूरेबल गुड का एग्जांपल क्लोथ्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स का एग्जांपल मिल, और सर्विसेज का एग्जांपल टीचर्स. सो टुमारो वी विल बी हैविंग द कैपिटल.